Ji, Assalamu alaikum to everyone. So I'll just recap last time that we understood that sabr and patience and self-restraint, which is taqwa, we learned all about that under Uswa Hasana, but at the same time fighting is prescribed upon us, which we have to do in a sensible way, in a non-emotional and sensible way, and assertive way, but not going beyond limits. So non-aggressive, non-emotional way. अल्लाह की आयतों की गाइडेंस में लेकर हमने फाइटिंग करनी है और सब्र के साथ करनी है और वो सारी चीज़ें हमने सीखी तो at the same time while we are learning about Uswa Hasana and we have gone over the ayat which tell us about our guards that we have to develop, what to do, what to not do. We have been doing Mokim ayat. So all that leads to development of uh, sorry, it's poor connection. So all that leads to development of a garment, our garb, that is libas. So इसको अल्लाह ताला ने explain किया है तकवा के लिबास के sense में. So because this is like our garment that we wear when we go out and conduct ourselves. So we are going to read about that in Surah 7, ayat number 26. So it's takwe ka libas, na? Takwe ka तकवा का libas, na? लिबास जी Basically. तकवा Okay. का लिबास Okay, thanks. जी तो absolutely. 7 है आयत नंबर और सूरह 7. आयत नंबर 26 Thank you. जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदमा ए आदम के बेटे कद अनज़लना अलैकुम लिबासन बेशक हमने नाजिल किया तुम पर लिबास युवारी सौआतिकुम वरीशा जो छुपाता है पीछे कर देता है तुम्हारी सौआतिकुम is translated here as shame, but it's actually sawatikum is the same root word, has the same root word as uswa. Uswa means proportion. Since we have learned about the most beautiful proportion, which was uswa hasana, that we learned from various ayat, so sawatikum is your misproportions. तो अभी तक जो आपकी वीकनेसेस हैं जो कि अभी प्रोपोर्शन में नहीं आई हैं वो कवर करता है आपका लिबास. जब आप दूसरों के सामने जाते हैं तो ये लिबास के साथ जाते हैं जो आपने सेल्फ रिस्ट्रेन का लिबास सीखा होता है बिकॉज यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स फ्रॉम एंड फॉर योर ओन मिसप्रपोर्शंस. सो इट कवर्स अप. लिबास का मतलब है कवरिंग. सो इसका आप रेफरेंस देख लीजिए 2 की 40 में है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, सेम वर्ड लिबास. आई एम जस्ट गोइंग टू कंफर्म इट. 2 की 40 एंड डू नॉट कवर अप हक विद बातिल. जी 2 की 2 की 42 वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल एंड नहीं कवर करें. सो लिबास पर पहनाए हक को बातिल का. सो लिबास certainly means covering. So here also you cover up your misproportions of your conduct. Varisha. Risha is something, a poshak, which actually makes you look good as well. अम्मा So, आपने 2 की 42 कही है रेफरेंस के लिए? जी 2 की 42. Surah 2, Surah Baqarah, Ayat 42. So it not only covers you up, it makes you look beautiful also. When you go with your garment of guard and self-restraint, you look, not only cover up your vulnerability and your misproportions and your weaknesses, you also look good and decent in front of others. व लिबास तकवा, और ये है तकवा का लिबास. ज़ालिका खैरुन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है. ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, और ये है अल्लाह की आयतों में से. ये साइन है लअल्लहुम यज़क्करून, उन लोगों के लिए ताकि वो जिक्र कर सकें, ताकि वो याद कर सकें अल्लाह को. या बनी आदमा, ए आदम के बेटो बच्चों, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु,
नहीं तुम्हें फितना में ले ले, कैप्टिवेट कर ले शैतान, कमा अखराजा अबा, जैसे कि खारिज किया उसने तुम्हारे फादर को, तुम्हारे पेरेंट्स को, मिनल जन्नत, जन्नत से, यंज़िहु अनहुमा लिबासहुमा, के एक्सट्रैक्ट कर लिया, यंज़िहु हटा दिया उनसे, स्ट्रिप देम ऑफ, उनका लिबास, लियूरियाहुमा सौआतिहिमा, और उनकी एक्सपोज कर दी, दिखा दी उनकी, सौआतिहिमा इज द सेम वर्ड, misproportions, their weaknesses became evident. इन्नाहु यराकुम हुआ, बेशक वो देखता है तुमको, हुआ व कबीलु, he and his कबीला, कबीला is group of people, his tribe, मिन हैसु ला तरौनाहु, वहाँ से जहाँ से आप उनको नहीं देख सकते, इन्ना जअलना शैताना औलिया, बेशक हमने बनाया है शयातीन को as protectors, evil ones as friends, लिल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते. So शयाती, Sorry, I missed a thing. I have to go front briefly. Are we still on the same ayat or are we at the 26th day? 27 auntie, we're on 27. Surah 7, 27, just moved on to the next ayat. So आदम के बच्चों, नहीं कैप्टिवेट करे आपको शैतान, जैसे कि उसने निकाल दिया आपके वालिद को फ्रॉम जन्नत. सो आपकी स्टेट ऑफ गारमेंट, स्टेट ऑफ तकवा इज़ ऑब्वियसली लीड्स यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ पीस. एंड जैसे हटा दिया आपका लिबास ताकि आपके जो हैं मिसप्रोपोर्शंस become exposed, and of course they see you from a place where you can't, from your blind side where you can't see them, and similarly the people who don't believe. Next ayat, surah 7, same surah, ayat number 28, wa iza fa'alu fahishatan, और जब उन्होंने किया कोई फहाश काम, शेमफुल डीड, समथिंग इनडिसेंट, कालू उन्होंने कहा, वजदना अलैहा आबाअना, हमने पाया है इसी तरह हमारे फादर्स को, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें ऑर्डर किया है इसका. कुल कह लें, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, कहिए बेशक अल्लाह ने ऑर्डर नहीं किया फाशा का. आतकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या आप कहते हैं अल्लाह पर वो जो कि नहीं है आपको इल्म जिसके बारे में. सो यहाँ पे फहाश का जिक्र आया है. सो व्हेन यू डोंट हैव तकवा you end up doing fahashka. So fahash is obviously something where it is like opposite of having self-restraint. So fahash is something indecent, yes, but at the same time something which has no limit. Vulgar, indecent, without limits, you go all exposed. So that is fahash. So sometimes you see vulgar display of wealth, vulgar display of food, कोई self restraint आपको उसमें नज़र नहीं आता है. And of course we take it in terms of exposure also in the sense of sexuality. So is there a disconnect in the connection, because I'm getting a आपको सबको connection ठीक लग रहा है? Yes, we can hear you. Perfect. नहीं, Mine is कनेक्शन okay. थोड़ा जरा डिस्टर्ब्ड Mine है, also. डिस्टर्ब्ड है, हल्की आवाज आती है, घर घर सी उसमें आवाज आ जी रही जी है. जी, बीच में I can also hear जी जी something. जी जी, मुझे कुछ ऐसी आवाज आती है घर घर सी ना, आई डोंट नो Okay. किसकी आवाज है ये. As long as it's still continuing, we can continue or we can join again after rebooting or something. ठीक है ठीक है चलिए, ठीक अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे रोक लीजिएगा. ठीक है जी. ठीक है, थैंक यू. ऑल राइट. सो आप अल्लाह पे वो कहते हैं जिसका आपको इल्म नहीं है. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी बातें जो हमने पिछली 2-3 सेशंस में सीखी थी, दे हेल्प अस डेवलप अ गारमेंट ऑफ लाइक अ कॉन्डक्ट, libas of taqwa that we stitch together, and that's what we wear, like our persona and our conduct is then based on whatever ayat we follow.
सो आपका एक पूरा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इन द सेंस ऑफ अ कवरिंग which you wear every time you are dealing with people. So at the same time we are going to look at 20 की 118 देख लीजिए, सूरह 20 आयत 118. So जब आप जन्नत में होते हैं, meaning in a state of peace and equilibrium, you don't have to worry. But इन्ना लका अल्लाह तजुआ फ़ीहा वला तारा, बेशक इसमें है आपके लिए enough so that you don't go hungry, और ना ही आप तारा is निकला है without bare. So you don't go bare when you are in Jannat, and you don't go without food. So you get the feeding from Allah Ta'ala and you continue to enjoy your garb of taqwa. So आगे आप देखिए, जब शैतान आपको expose कर देता है and then takes you out of the state of peace, 121 में फ़अकला मिन्हा, फिर जब खा लिया उन्होंने उसमें से, द टेम्पटेशन में से, फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो ज़ाहिर हो गई उनको उनकी वीकनेस, उनकी मिसप्रोपोर्शनेट कैरेक्टर. वत्तफ़िका यख़सिफ़ाने अलैहिमा, एंड दे स्टार्टेड टू रिपेयर मिन वरकिल जन्नत, जन्नत के वर्कों में से they started to repair their garment. So what do we do whenever we have done some wrong? We come back to the book, we start learning again कि हमने जहाँ पे हमारी weakness expose हो गई है, हमारी कोई अंदर shortcoming थी that's been exposed to us, we start repairing that from the book. From the book we get to know the warak of Jannah is actually कुरान के सफ़े, उनसे आप और अल्लाह की आयतें, उन्हीं से आप अपनी रिपेयर करते हैं. व असा आदमा रब्बहु फ़ग़वा, और इस तरह आदम ने उसके रब से अपने आप को अलाउ कर लिया टू बी टेम्प्टेड. आदम डिसोबेड हिज लॉर्ड. ठीक है जी. बट देन अल्लाह ताला टर्न्स टू आदम, एंड इसी तरह द प्रोसेस कंटिन्यूज. सो द सेम वे वी हैव आल्सो सीन व्हेन वी रॉन्ग आवरसेल्व्स, वी सीक फॉर फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह ताला, वी स्टार्ट करेक्शन, वी स्टार्ट मेंडिंग आवर वेज, एंड देन अल्लाह ताला टर्न्स टू अस, एंड अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल. Okay, so at the same time, now that we talk about libas, I will just talk about the outer garment also, that is 33 की 59, और I think we should learn about 24 की 58 देख लीजिए, because हर वक्त आप ये लिबास नहीं पहन के रख सकते हैं. It's very heavy, it's very overbearing to have 24/7 the guards on, taqwa ka libas, when you're dealing with people. So Allah Ta'ala has given us relief from that as well. So 24 ki 58 is yes to be seen physically as well and spiritually as well. When you, like we learned in the previous ayat 20 to 118 में, कि आप बेयर नहीं जाते हैं जन्नत, आप नेकेड नहीं होते हैं, विदाउट गारमेंट नहीं होते हैं जन्नत में, लेकिन फिर आप जन्नत से निकल भी जाते हैं टाइम एंड अगेन. वो दीज आर आयतें, तो इसमें आर्ग्यू हम कर ही नहीं सकते, ये तो होगा ही हमारे साथ दुनिया में रहते हुए. So 24 की 58 देख लीजिए. These are the times when Allah Ta'ala tells us that you can go without your garment. So आप अपने तकवा के लिबास के बगैर जा सकते हैं at these times. So again you have to manage that, because अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर, आपको हर वक्त you will feel burdened after some time, because हर वक्त आप तकवा के मोड में नहीं रह सकते हैं. ठीक है, we are human beings, we have our weaknesses, and we have to have a system whereby we give ourselves relief also. Lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Sorry, I'll start with the ayat 58. Ya ayyuhal lazina amanu, ए लोगों जो ईमान लाए हो,
जिनकुमुल लजीना, तुम में से इजाज़त लें वो लोग, मलकत ऐमानुकुम, जो आपकी राइटफुल अथॉरिटी में हैं, वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा, और वो लोग जो नहीं अभी पहुँचे हैं बलागत तक, कम ऑफ एज टू मैच्योरिटी, मिनकुम सलासा मर्रात, वो इजाज़त लें 3 टाइम्स पर। सो 3 टाइम्स पर सबको इजाज़त लेनी है आपसे। मिन कबले सलातिल फज्र, फजर की नमाज, ये फजर फूटने को कहते हैं। सो जब दिन आपका फूटने लगता है, बिफोर यू गो इन टू द डे, सो एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द डे, सो यू गिव योर सेल्फ दैट रिलीफ फ्रॉम द लिबास, द हेवी conduct that you have to have. So इसको आप spiritually लीजिए, that Fajr is the time, early morning time, before you start your communication with Allah Ta'ala, and then you have to communicate with the rest of the people. वहीना तदाऊना सियाबकुम मिनज़ ज़हीराते, और जब तुम हो कि when you take off your लिबास, मिनज़ ज़हीराते is ज़ोहर का time. Zohar ka time is again after peak heat. Then again you give yourself a break. Wamim baade salatil isha, और इशा is the night time. उसके बाद भी आप communication के बाद, जब when the day ends for you, तब भी आप अपने आप को रिलीफ दीजिए। सलासु औरातिल लकुम, ये 3 टाइम्स हैं आपके to be bare without the guards, आपकी to be naked without a covering. So you have to be without a covering, which is can be, which we have learnt about, that is used for, that is for your conduct. तो अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हर वक्त अपने ऊपर आपने एक solemn behavior and conduct रखा होगा, that's going to be very overbearing. लैसा अलैकुम वला अलैहुम जुनाहुम बादहुन्ना, और नहीं है तुम पर और ना ही दूसरों पर इसके बाद कोई हर्ज, other than these 3 timings. तवाफूना अलैकुम बादुकुम अला बाद, कि वो आपस में एक दूसरे का चक्कर लगाएं. So when you go about after that, this is the time when of your privacy, so your private moment, and that is the time when you can be without guards. So be without guards in your privacy. Besides that, when you are with others, of course, then you have to be guarded. कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इस तरह बयान करते हैं अल्लाह तुम पर अल आयात, अल्लाह की आयतें, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म रखने वाले और हिकमत वाले हैं. Now at the same time we have to understand that within us there is pairing also. We've learned about masculine and feminine pairing. So आप 36 की 36 देख लीजिए, because जब आप लिबास की बात करते हैं और आप एक दूसरे के लिबास की बात करते हैं, तो उसमें आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हैज़ टू बी कवरिंग ईच अदर. सो आप देखिए 36 की 36. So it is not just to see, because I'm going to take you to the again the libas ki ayat where Allah Ta'ala says in, I think पहले वो देख लीजिए, fasting देख लें 2 की 180. Amna, जी जी Amna, I'm जी sorry. When you जी say that you can stay off guard, but yes. in what context? Like you are you need not go into a discussion, or I mean, नहीं off आंटी, guard you can. जनरली जो आपकी डीलिंग होती है लोगों के साथ, जिस तरह हमने उस पर हंसना पड़ा है, उसमें आपने सारी चीज़ें सीखी हैं, द डूज़ एंड डोंट्स. तो अब आपने डूज़ एंड डोंट्स पे आप हर वक्त 24/7 प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. You tend to develop a tendency of being very proper all the time. That is a little overbearing for human nature. तो आप Or you do not हमेशा discuss religion, or you do not discuss नहीं, any concepts or anything. yes, that too, religion और discussion, and एक आपका एक
एक्चुअली एक आपका persona बन जाता है, the way you conduct yourself. वो persona भी आपके ऊपर, you see, अगर आप उसी persona में you are going to be living that all the time and not like kind of taking your guards off at certain times, you will become, you know, that will take you to a different tangent then. तो आपको ह्यूमनली अपनी नीड्स को एड्रेस करना है एंड अंडरस्टैंड कि हर वक्त आप अपने ऊपर चेक्स नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दैट हैपन्स. आप हर वक्त समझते हैं कि जी यू हैव टू बी दिस वे ऑल द टाइम. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अल्लाह ने आपको रिलीफ दिया है. तो अपनी प्राइवेसी में, अपने टाइम्स में आप अगर वो रिलीफ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू सस्टेन दैट तकवा का लिबास एट टाइम्स व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल. इट सिंपली मीन्स दैट. ठीक है जी. No, it's like being too mechanical, isn't it? All the time, 24/7, तकवा का लिबास, paranoid, सारा वक्त अब सवार है, जी 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 अपने जी ऊपर जी रखो अपने कि ऊपर ये सवार है हो. ना. बिल्कुल तो थोड़ा सा बिल्कुल. अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सैनिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ऑफ गार्ड आना Yes. पड़ता है. नेचुरल, इट्स It's नेचुरल. natural. बट बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बट वी हैव Absolutely टू उसी बी की ऑन बात. चेक ऑल द टाइम कि जी ओवरबोर्ड ना चले जाए, आउट ना हो जाए ज्यादा, लॉन लाइन ना क्रॉस कर लें, है ना. बिल्कुल So ठीक. बिल्कुल. you mean big you mean enjoy some worldly, Yes, see a yes. movie, Of see a course, of play, course. जरूर कीजिए. listen to some music, indulge Of in some of course. these things देखिए privately. ये बिल्कुल But देखिए ये you चीजें mean तो no वैसे भी. individuals are no, you mean not in company, or also enjoy the company, go to a music party or do देखिए जो भी आपका, Why देखिए not? एक आपके लेवल्स होते हैं. ठीक है जी. कुछ चीज़ें आप अपने कोर फ्रेंडली ग्रुप के साथ अगर आप कोई बातें करते हैं तो वहाँ पे आप it's okay because it is taken and understood in the same way that you're not humiliating anyone or you're not talking about anyone in a degrading way. तो आपको मतलब इजाज़त होती है in your immediate, yeah, in a private manner to do things when you just get a relief. Basically, otherwise अगर आप अपने आप को सवार कर लें, जिस तरह आंटी ने कहा सर पे कि जी 24 घंटे आपको उसी तरह गार्ड में रहना है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. वो अल्लाह ने आपको रिलीफ दी है तो इट्स जस्टिफाइड. एंजॉय अ ब्रेक at moments when so you you can find. go attend a mixed gathering of a mehndi or something like that. देखिए My मिक्स्ड goodness. गैदरिंग आप Nasreen. इट्स हर चीज़ को आप अपने रेफरेंस से लीजिए. अगर आपको कभी लगता है हाँ. you want to watch people dance and be part of something once in a while and you feel that your relatives are there and you will enjoy with them, Of course. so it's बिल्कुल. personal. It's your personal choice. Right. कोई किसी भी एक्ट को, किसी भी चीज़ को आप completely blanket ख़त्म नहीं कीजिए. ना बना उसकी, दे. हाँ, उसको वो इशू ना बना दीजिए. आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ जाके मिलिए. अगर आप थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपको बॉदर करती हैं एट अदर टाइम्स, तो आप restrict it to the level that you are just enjoying that, and you will not enjoy it if it becomes later on आप खुद ही enjoy नहीं करेंगी उस तरह की चीज़. लेकिन And there is Amina, benefit in having. Amina is also very stalemate to stay always good all the time. एक इंसान ने अपने No, आप no, को एक ढाल बनाया हुआ होता है. Always being good, यही always बात, being good. सारा वो वक्त अपने वही से You बोझ बात, सवार can't, रखो सर पे. वही बात हो रही है you जी. है can't ना. बिल्कुल. remain, अक्सर हाँ. no, you hmm. can't remain Because all good and restrained All and good. बिल्कुल ठीक बात है. you can't angelic. remain Miss Puri वो Puri. हमने देखिए इसको लिंक कीजिए ना, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर एंजेलिक बनने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, बीच में एक देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रीफ दैट इज़ हिडन. इब्लीस कीप्स ग्रोइंग, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हावी कर ली होती हैं एज अ टू बी परफेक्ट. तो आप यू विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन. यू और विल परफेक्ट हैव, हो भी नहीं सकता कोई. परफेक्ट वो हो तो भी नहीं हो ही नहीं सकता कोई. सकता, लेकिन आप कैसे अपने हो आप. सकता है? स्ट्राइव जी करना होता जी है बस. जी दैट्स जी इट. बिल्कुल. और जिंदगी अपने को आप को, आसान बनाना जी होता है. बिल्कुल बैलेंस में लेके चलेंगे तो आपका ये सिरात मुस्तकीम विच इज़ एन एस्टैब्लिश्ड वे, यू विल बी एबल टू सस्टेन इट. So sustainable way of growing and improving
requires that you get breaks periodically. So you have to Yes, incorporate in your lifestyle certain breaks which you get with either very close loved ones, जिनके साथ जो कि आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि ओके यू जस्ट हैविंग इट्स ऑल इन लाइट हार्टेड वे और वट एवर, जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोगों के सामने नहीं करेंगे, तो आप लोगों के सामने आपका गार और से और बढ़ता जाता है, लेकिन अपने जितने भी आप करीब करीब के लोग आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के, इट्स वेरी नेचुरल. So you let your guards down, you let your hair down once in a while, you do this, but again you do it in restricted private ways. ठीक है जी. इसको आप एक बिल्कुल. देख लीजिए सूरह 2 सूरह बकरा की आयत में देखिए, आयत नंबर 187, बिकॉज यहाँ भी लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर आयत बिकॉज fasting, as we read in 183, is la'allakum tattaqoon. So I'll read it first. 2 की 183, या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, लिख दिया गया है तुम पर फास्टिंग, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कब्लिकुम, जैसे लिखा गया है उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा ले सको. तकवा is referring to your self-restraint, and that will happen when you fast. And what are we learning from here? We've just been through a month of fasting. Fasting is not water and food only. Fasting is a whole lot of, developing self-restraint from things that we would not indulge in if we are on the right track. So सारे जो मोहकम आयात हमने पढ़ी हैं, उनके लिए आपकी capacity develop होती है to restrain yourself when things that are allowed to you like eating and drinking are not allowed to you, because for Allah's sake you develop that capacity to further fast during the rest of the 11 months. अब आपकी फास्टिंग किससे होगी? आपने जो आयतें पढ़ी हैं, आप अपने आप को you will fast from indulging in those activities which you have learned are not right for you. ठीक है जी. तो अब आप जब फास्ट करेंगे तो उसमें आप देखिए 2 की 187, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम, हलाल है तुम्हारे लिए रोज़े की रात में, रफसु इला निसाइकुम, कि तुम कोई ऑब्सीन टॉक करो तुम्हारी औरतों के साथ, मीनिंग कोई प्राइवेट मोमेंट है आपका. हुन्ना लिबासुल लकुम, ये तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुम्हारे लिए लिबास है. अगेन लिबास का लफ्ज़ आया है, means that they will cover up for you, and व अंतुम लिबासुल लहुम, और तुम हो लिबास उनका. अब इसको आप अपने सेंस में लीजिए, इंडिविजुअल सेंस में, तो आपके इंटेलेक्ट को आप डेवलप करते हैं. तो जिस तरह वी आर डूइंग राइट नाउ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है रीजनिंग की, that will cover up your emotional being. ठीक है जी. आपके emotions जब आप when you are learning, you learn to cover up for your emotional side, and your emotional side will cover up for your intellectual side. So ये दोनों का combination goes together, and they both have to work together in tandem for your balanced personality to grow and to continue like that. ठीक है जी. तो आपका सेल्फ रिस्ट्रेन खाली आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, योर इमोशनल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये आपकी पेयरिंग जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जब आपको रिलीफ देनी होती है अपने आप को, तो वो आप अपनी इमोशंस को रिलीफ दे रहे होते हैं. सो इन दोनों का ख्याल आपको रखना है. तो तभी आप खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में with contentment and with satisfaction you can progress further. ठीक है जी. I hope this point is clear to everyone. And next जी हाँ, thank you. ठीक है जी. Thank you. And in I'm going to read 33 की 59 now. Because जब आप
अल्लाह के कौन सूरा अहज़ाब 33 आयत नंबर 59। लैंग्वेज? जी, या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी, ओ प्रॉफिट, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, कह दीजिए आप अपने स्पाउस से और आप अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीना, एंड ऑल मोमिनीन who are all women, believing women, ईमान वाली औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, to base upon themselves from their outer garment. Jalabibihina is another covering. Apart from your taqwa ka libas, you have to base upon yourself another covering, another outer garment. Zalika adna ay yurafna. This is the least that they can do to be recognized. Fala yuzain, and not be harassed. वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह है मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले. So again, jalabib, the outer garment, is similar to taqwa ka libas, another layer of formality in your conduct. So when you are in the following of Nabi, क्योंकि address किया गया है नबी को, and आपका intellect is in the following of Nabi, तो आप अपने इमोशनल साइड के ऊपर एक एडिशनल आउटर गारमेंट डालेंगे, मीनिंग you will not expose your emotional side in front of other people. So there is in front of people whom you need to be recognized, ताकि आपकी पहचान हो. तो ऐसे लोग जो कि आपको नहीं जानते, एंड अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज अगेन अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. इट इज़ नॉट समथिंग दैट कांट बी अंडरस्टूड. अगर आप अल्लाह के रास्ते में अपने आप की करेक्शन कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके ऊपर एक थोड़ा सा मेच्योरिटी का लिबास आ जाता है, soberness का. You become more sensible. So all that is an outer garment, and you don't share your emotional side with people who are not familiar with you. So it's not about people. We are not addressing to your family members or your friends or people who know you. People who don't know you, if you have that persona about yourself, they will know that you are somebody serious, and people will not approach you with wrong intentions. So that is again something to be understood spiritually. Yeah, Amna, what जी. about the outer garment? Do you think we should have a physically also wear an outer garment? There's no harm. Of course, देखिए physically तो है, नहीं जी, बिल्कुल physically तो आप करते हैं. We understand that physically also when you go in public. So when you go in public and you feel that you need to cover up with an additional garment, ऐसी जगह जब आप जाते हैं, देखिए हमारा naturally instinct होता है, हम कभी बाजार जैसी ऐसी जगह पे बाजार जैसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे रश होता है, we do that anyways. आप एक एक्स्ट्रा चादर भी ले लेते हैं, आप खुले से कपड़े पहन लेते हैं, आपको पता होता है आप किस गैदरिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को कवर कर लेते हैं. So you do that, because you are aware and you are sensible enough to do that. और उसके बाद आप अगर जैसे जैसे आप ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको you feel and it becomes actually part of your personality also, that you become a little more reserved and formal in your behavior. So that is what is meant spiritually and psychologically, and you don't share, आप इस तरह से अपने आप को नहीं शेयर करते इमोशनल साइड को. लेकिन एट द सेम टाइम हर इंसान की पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट, एंड दे हैव टू डिसाइड whatever, if they can handle themselves. And that's why you see a lot of women in gathering, अपने अपने तरीके से हर एक की पर्सनालिटी होती है, not to judge anyone, but you know that this person is being a certain way because they are that way, so you take them to be like that. So आप हर किसी को ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो अगर इतनी फॉर्मल या इतनी वो नहीं है तो वो अल्लाह के रास्ते में नहीं है. नॉट एट ऑल. ये आपके लिए है to read an ayat and understand and apply for your own self only. तो आपको अगर ज़रूरत कहीं महसूस होती है एक आउटर गारमेंट की,
अपने आप को तारुफ अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए आप ज़रूर पहनिए। आपको फिज़िकली पहनना पड़ता है, फिज़िकली पहनिए। आपको वैसे ही आप you can conduct yourself in that way that you have a garment in your personality. That's fine. It's your own personal judgment to what level you can implement it and to what level you feel the need to implement it. और बाकी आप आयतें पढ़िए तो अल्लाह ताला आपको और सिखाएंगे और समझाएंगे। जब भी आपको लगेगा कि आपको पहनना ज़रूरी हो गया है अब, तो आप ज़रूर पहन लेंगे। It's your personal communication with Allah Ta'ala and your understanding. और वैसे भी कुरान की लाइन में कंटिन्यूसली स्ट्राइव करने से भी एक सोबर ऑरा बन जाता है पर्सनालिटी का। जी, that is exactly what I'm हाँ, talking about. वो हाँ बिल्कुल वही आपने यही कहा जी, बिल्कुल वो बन जाता है। बिल्कुल वो आपका तो ये अल्लाह ताला की जो आयतें हैं ये वही कंफर्म करती हैं आपको कि जो जी, आपके जी। साथ हो रहा है। अगर आप जी, अपने आप को 5 साल पहले देखें और अब देखें जो आपने अपने अंदर करेक्शंस की, इस्लाह की और जो चेंजेस जी। लेकर आए, you naturally become more serious about life बिल्कुल, and बिल्कुल। and especially with people whom you don't know. So Right. again, keep in context, this is about आपका तारुफ कि you are recognized like that. हाँ, So हाँ। that is what is वही intended. हमारी मार्फत बन जाती है ना एक तरह से। मार्फत बन जाती है जी, आपकी पहचान बन जाती है। पहचान बन जाती है जी। But at the same time, अब Right. दूसरी आयतों को भी देखिए जो हमने पहले पढ़ी कि आप अपनी पहले पढ़ी, फैमिली और बिल्कुल, फ्रेंड्स के बिल्कुल। साथ और जी। अपने आप के साथ और अपने क्लोज्ड वन के साथ, आप स्पाउस के साथ स्पेशली, आपको जी। उस तरह के प्रॉपर गार्ड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं होती। किसी आप जी। अभी अगर आप जनरली आप देखें ना, स्पेशली इन मैरिटल रिलेशनशिप, we see that in our society when women go on this path, they become so proper that सोने से पहले वुज़ू करके जाना है आपने, and their sort of relationship gets affected. So that is not required. आप बिल्कुल सही बात है, जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात। मैरिटल रिलेशनशिप तो वहाँ पे आपने लिबास नहीं पहनना है तकवा का, जी, वो वाले जी। गार्ड्स आपको अलाउड हैं। अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, आपका स्पाउस इज द लिबास। तो बिल्कुल सही वहाँ बात। पे आप अगर उनके साथ इस तरह से बिहेवियर रखना शुरू कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा ऑब्वियसली। दिस इज बहुत मैकेनिकल, बहुत सी रोबोटिक किस्म की हो जाएगी एग्जिस्टेंस इंसान की। वेरी ओवरबेयरिंग लाइक यू सेड, बिकॉज कहीं तो इंसान ने अपने आप को सैनिटी मेंटेन करनी है ना, तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है, दोनों चीजों को। बिल्कुल आपकी एंड प्लीज एक्सेप्ट योर इमोशनल नीड्स। जी। आप इंसान हैं, इमोशनल नीड्स हैं और इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, दोनों नीड्स हैं। खाली कुरान पढ़ने से आप अल्लाह ताला आपको दोनों चीज़ों की ग्रोथ की एडवाइस कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस में ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप 36 की 36 देखिए। थैंक यू सो मच। 36 की हमने बिफोर यू गो ऑन, मैं ये पूछ रही थी कि ये लिबास एज इन नॉट तकवा का लिबास, बट लिबास एज इन लिटरल वे में भी जो हम गारमेंट या हम कपड़ा कोई पहनते हैं उसमें भी, एंड देन तकवा का लिबास आल्सो, हाउ आर दीज थिंग्स रिलेटेड टू कल्चर? because होगा कोई कल्चर से लिंक, या कुरान वुड बी अप्लाइड एवरीवेयर इन द सेम वे नो मैटर व्हाट द कल्चर इज, नो मैटर व्हाट? Yes, Quran is without boundaries of culture, but how we understand and how we apply our conditioning and our cultural and societal whatever situation is, वो affect करती है how we apply it. लेकिन कुरान की तो आयतें वही हैं जो कि पूरी दुनिया for mankind they are standing. बट जस्ट लाइक देखिए एक रेसिपी है, आप सब खाना पकाएंगे उसी रेसिपी से, इवन अगर आप मसाला भी वही ले लीजिए तो फ़र्क टेस्ट आएगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डाइवर्सिटी दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, दैट एवरी ह्यूमन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट इन हर कोई अपनी शाकिला के मुताबिक एक्ट करता है। वो हमने आई थिंक आयत पढ़ी है सूरह 7 के अंदर, दैट एवरीबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन मोल्ड। शाकिला इज मोल्ड दैट अल्लाह हैज मेड यू इन। शाकिला में जीन्स भी आते हैं, जीन्स एंड योर बिल्कुल आएंगे, आपके जीन्स आएंगे, आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सिचुएशन, आपकी इन्वायरमेंट
and everything has a role to play in. So external factors, internal factors, you don't have control over everything, but your Amna, intention. can you do that ayat again, please? Shakila one. The one Gigi, Shakila. Shakila, yes, Auntie, I'm just going to look at it. I'm not Thank you. 100% sure. I think it's 17, Surah 17. I hope I find it. जी, Surah 17 की 84. आप देख लीजिए so that everyone is clear on this. कुल कह दीजिए, so Allah Ta'ala is saying to Rasul, आप कह दीजिए, कुल्लु यामलु अला शाकिलातिही, हर कोई अमल करता है upon his own disposition, शाकिला, the mold. फ़रब्बुकुम आलमु, फिर तुम्हारे रब को इल्म है, बिमन हुआ आहदा सबीला, कि कौन है गाइडेड वे पर. तो अगेन अल्लाह ताला ने कह दिया है कि हर एक को अलाउंस है टू एक्ट ऑन हिज ओन mold, disposition that he has, that is individuality, that is your personal personality, that's your uniqueness, that's how Allah has made you, and Allah knows alone who is on the right path. अब कौन जो है, आपको कंपेयर ही नहीं कर सकते इसके बाद अपने आप को किसी से या किसी को अपने साथ. कौन किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करता है, बिहेव करता है, और वो इज़ ही एक्चुअली स्ट्राइविंग और इज़ इट really no effort for him. So somebody may be doing something with much ease, but another person will be doing the same thing after putting in a lot of effort and overcoming his nafs. तो हर एक का फिर टेस्ट भी फ़र्क है और हर एक की अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड एंड जजमेंट भी फ़र्क है. सो ये तो आप हर एक को आप सेपरेट कर लीजिए, in that sense. But at the same time, we are all made of one psyche, which is nafs wahida, surah 4 की 1. So नफ्स वाहिदा से हम सब क्रिएटेड हैं, बट हर एक के अंदर जेनेटिक मेकअप, जिस तरह से आप देखते हैं ना, फिंगरप्रिंट भी हर एक का सेम नहीं है. सो रेटिना भी आपका जो है, आपकी आइडेंटिफिकेशन इज़ डिफरेंट. सो द सेम वे आपकी कॉम्पोजिशन, आपकी द कॉम्पोजिशन जेनेटिक एंड व्हाटएवर यू मेड अप ऑफ इज़ डिफरेंट. तो उसके coming from there, you will respond to things in a different way and apply to the same ayat and understand it differently, which is totally okay. So what do you mean by nafs wahida? Can you please explain that? जी, surah 4 की 1 देख लीजिए. Actually this helps us understand कि हम सब एक ही हैं. तो ये जो differences हमने बनाए होते हैं एक दूसरे के against, it puts an end to that. जब आप, when you start relating to other people as सबसे पहले आप जब अपनी खामियां एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कि आपकी भी अंदर बुराइयां हैं और आप इतने कोई एंजल ना बनने की ज़रूरत है आपको, और ना जस्टिफाई करने की आपको ज़रूरत है अपने आप को in everything that you do. So once you start accepting your weaknesses, you become compassionate and tolerant towards others as well, and that is what is required. Otherwise आप हर वक्त जब आप पेडेस्टल पे बैठ जाते हैं तो आप हर इंसान को बैठ के सिर्फ जज कर रहे होते हैं कि आप में ये खामी, आप में वो खामी, बिकॉज हम में तो वो नहीं है. Not required at all. So Surah 4 की 1 is या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल लज़ी, ए इंसानों, Allah is addressing all mankind. अत्तकू रब्बकुम, गार्ड लो तुम अपने रब से. द क्रिएटर, पालने वाला, सस्टेनर, उससे तुम गार्ड लो. अल्लाज़ी खलकाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वो है जिसने तुम्हें क्रिएट किया फ्रॉम अ सिंगल सोल, सिंगल नफ्स, सिंगल साइकी. तो आपकी सोल एक ही है. वखलका मिनहा ज़ौजहा, और फिर बनाया उसमें से, फ्रॉम हर, उसका स्पाउस. So the soul is a feminine. So you are a feminine soul first. Like there is a pool of attributes. उस pool में से हर इंसान को कितना proportion of each attribute मिलता है वो अल्लाह की मर्जी है.
उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रोपोर्शन, वो सब अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड आती है। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, और बसा दी उनके साथ अल्लाह ने कसरत से मर्द और औरतें। सो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो पॉइंट है विच फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस इज दैट वी आर ऑल वन, फ्रॉम वन सोल, फ्रॉम वन साइकी। तो जो आपके अंदर है वो अगले के अंदर भी है। तो वही अगर आपको कोई बहुत लाइक किलर इंस्टिंक्ट, फॉर इंस्टेंस किलर इंस्टिंक्ट इज विद इन एवरीवन, तो कोई उसको ओवरकम कर जाते हैं, कोई उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कहना कि आप तो हरगिज़ किसी को किल नहीं कर सकते, ये आपका क्लेम हो ही नहीं सकता। आप किस Sorry, Amina, killer instinct is what? Like being aware of where you're going wrong or? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट अच्छा आपके अच्छा अंदर इंस्टिंक्ट होती है टू किल। जी 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 जी, वो किताल की बात तो नहीं हो जाएगी यहाँ वो पर? फाइटिंग है जी, फाइटिंग की है। वो फाइटिंग जी, एंड जी बिल्कुल, और अगर आप किलिंग इन द सेंस ऑफ ओवरकम लीजिए तो वो भी ओके जी, तो अगर आप कहें कि जी हाँ बिल्कुल किताल वाले सेंस में आप लीजिए टू जी ओवरकम, जी सम पीपल आर एबल टू ओवरकम विद इन देमसेल्व्स, सम पीपल राइट कांट डू दैट, सम पीपल एग्जिबिट इट एक्सटर्नली। अब जी, कौन सा इंसान कहाँ से आ रहा है वो हमें नहीं पता है कि वो उसकी क्या सबकी मजबूरी, इंडिविजुअल एफर्ट होती है, ठीक, बिल्कुल सबकी ठीक। इंडिविजुअल है। तो आप बिल्कुल, एंड उसके बचपन में क्या उसको बेचारे को फेस करना पड़ा, उसकी कंडीशनिंग कैसे थी, आपका जो एटीट्यूड है वो रसूल अल्लाह की फॉलोइंग में रहमतुल लिल आलमीन का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, एम्पथाइज विद बिल्कुल एवरीवन, बी कंपैशनेट, इसकी आप राइट। आयत देख लीजिए 21 की 107। एक्चुअली आमना, बिफोर वी मूव ऑन, मुझे yes, प्लीज एक चीज, नफ्से वाहिदा कि yes. हम एक So, साइकी है Amna, एंड we have हम so उसको many. Amna, we have so many mics open. Can someone please close it? जी 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 बिल्कुल, हाँ Rabia, Shazia, जी जी, everybody, whoever please. is okay, जी जी, मे बी द वॉइस इज echoing। जी बताइए क्वेश्चन क्या था। अ, मुझे ये पूछना है कि नफ्से वाहिदा मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। सो मुझे ये, मेरा ये क्वेश्चन है कि इज़ इट नफ्से वाहिदा एक साइकी है जिससे हम सब ह्यूमंस का हम पैदा हुए हैं और हम बने हैं। सो हम कह सकते हैं कि नफ्से वाहिदा इज़ गॉड, or maybe God is some other separate entity and he has created nafse wahida. How yes should we yes take it? क्योंकि मुझे yes, बहुत that's how क्लियर we नहीं हो। जी जी, that's how we take it। नफ्स वाहिदा इज अल्लाह ने बनाया है, ठीक है जी, वो भी that is not to be confused with Allah, but our psyche is one, all mankind is made with one pool of attributes, one psyche, human psyche, जिसको आप कहते हैं ना collectively this is human psyche, so ये उसकी बात हो रही है। और इसको spiritually आप understand कीजिए human soul। तो कोई भी इंसान completely stone या हार्टेड, completely sensitive, completely बुरा या completely अच्छा नहीं होता है, उसमें हर किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये रिकग्नाइज करना हमें चाहिए कि उसमें किस इंसान में अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को पॉइंट आउट ना कीजिए। वी बिकम वेरी क्रिटिकल एंड लोगों को मकसद इन अंडरस्टैंडिंग का ये है कि काइंडली रिलेट टू एवरीबडी, so relate to everybody as somebody which is similar to you। so even if we hate somebody or hate, इंसान को hate ना कीजिए, बुराई को hate कीजिए। so इस तरह तो जो डॉक्टर्स हैं वो सारे they will say कि भाई आप लोगों को मना किया था ये करने को और आपने नहीं किया, तो वो तो कोई compassionate तो कोई इंसान हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से डील करने लग जाए इंसानों से कि जी आपने मेरी बात नहीं मानी, और इस तरह से we don't develop hatred towards people or ill feelings towards people when we understand that we are all the same। अगर वो किसी एरिया में गलत कर रहे हैं तो हम भी किसी एरिया में गलत कर रहे होंगे। Now we don't see it or see ourselves, of course, so it doesn't give us that ticket to just judge others। and जो आपने जजिंग करनी है, जजमेंट जो आपकी बिल्ड हो रही है फ्रॉम कुरान, बिकॉज कुरान इज क्राइटेरियन, a book of criterion। So the judgment that you're developing is to know the right and wrong, the right behavior and the wrong behavior, but not to put a label on people कि this is wrong,
person, तो बस ये आउटकास्ट. नो, उसकी आप रॉन्ग साइड को आप एराज कीजिए, राइट साइड पे आप अप्रोच कीजिए. स्पेंड टाइम विद पीपल in areas where you can connect with them because they are also the same as you are. So ये आपको understand करने की ज़रूरत है कि आप इंसानों को अपनी तरह से ही समझिए कि सब इंसान आपके जैसे हैं. आमना, मेरा Okay. क्वेश्चन ये पे वाहिदा के ही कॉन्टेक्स्ट में है कि जी जी जहाँ पे नफ्स की बात हुई है, पास्ट में भी हम लोगों ने यही अंडरस्टैंड किया है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जी नफ्स जी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक इमोशनल आपका होता है और एक इंटेलेक्चुअल. जी. तो नफ्स वाहिदा फिर क्या हो गया? इज इट अ कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू, इमोशनल साइड एंड इंटेलेक्चुअल साइड, या ये नफ्स वाहिदा उन दोनों से डिफरेंट कोई चीज़ है? जी, नफ्स तो प्योर फॉर्म ऑफ सोल है जी, एंड दैट इज़ अ फेमिनिन. नफ्स इज़ अ फेमिनिन. जब कोई बच्चा, दैट इमोशनल साइड. जी, जब द फेमिनिन साइड, बिकॉज हम इसी आयत में देखते हैं ना, और फिर बनाया उससे, फ्रॉम हर, मिन्हा. मिन्हा इज द टर्म यूज्ड फॉर अ फेमिनिन. फ्रॉम हर वी मेड हर स्पाउस, मीनिंग उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है ओके. when she starts to learn. जी, otherwise when a child is born, the baby is totally emotional, no control, no intellect, no understanding. It's just a bundle of emotions that he or she is born with. Uske baad, as the baby grows in the environment that is given to it, and the training provided and the nurturing provided, it starts to develop an intellectual understanding and reasoning and training it receives. तो वो इसका इंटेलेक्ट डेवलप हो जाता है. ठीक है ठीक जी. है, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया. ठीक है जी. So I'll just finish with 21 की 107. Actually, I wanted to do this in the context because आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जिसको कोरोना हो गया या जिसकी डेथ हो गई तो पता नहीं वो, you know, or anybody who is, because this is the time of fear and uncertainty, and a lot of people are struggling to maintain a, you know, a happy environment or a well, you know, or their well-being, and they're mentally stressed. But अगर आप mentally are well, it's because Allah Ta'ala has put you through already tests and trials where you have grown to be in a good place. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों को समझें कि हाँ अब उन पे क़यामत आ रही है या उनका इम्तिहान हो रहा है, तो हमें उस तरह से नहीं लेना है. If we have been blessed with being in a state that we are emotionally and mentally in a good place right now, so we have to help others come to that place as well, rather than sit on the side and watch them and feel that negativity, if we have any towards them, कि they are suffering because they are wrong people or they did wrong. वो आपका काम नहीं है, वो अल्लाह का काम है उनके साथ हिसाब लेना. आपका काम ये बनता है, like we've learned in Nafs Wahida, they are the same way, and these are times that Allah Ta'ala sends on people at different times. So ये भी नहीं आप कह सकते कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपके पास कोई कभी बुरा टाइम नहीं आएगा. वो 7 की 188. वेरी वेल एक्सप्लेन, माशाल्लाह. जी ये बहुत राइज हो गए हैं आजकल, यू जी नो, कोरोना के हवाले से, कि बिल्कुल अल्लाह ने ये इम्तिहान दिया है लोगों की आदतों की वजह से, लोगों की करतूत की वजह से, यू नो, इतनी प्रिवेल करती हैं चीजें. ये आई एम सो ग्लैड यू हैव क्लैरिफाइड इट, एंड आई होप, यू नो, कि ये लार्जर जी प्लेटफॉर्म पे इस चीज को ओपन अप होना चाहिए, कि लोग इसी चीज में रहते हैं सारा वक्त, अल्लाह के ये हो गया वो हो गया, यू नो, बिल्कुल. तो हमारी वो आप, करतूतों की वो वजह से. बेसिकली आपकी इट अपनी, इज सो देखिए वो पेनफुल, है, सो वो वो पेनफुल. वो ठीक है. अल्लाह ताला ने वबा भेजी है तो डेफिनेटली यस, हमें जी, उस इम्तिहान से गुजरना है. अल्लाह ने वो तो ही भेजी इम्तिहान है. वैसे ही आ गया ना, तो कैलेमिटीज तो एब्सोल्युटली आ जाती है ना, आ आ जाती हैं, जाती बिल्कुल. वो है. तो जी, हमने सूरा 2 की अब थोड़ी सी 2-3 आयतें देख लीजिए. द लेसन विल गो अ लिटिल लॉन्गर, बट आई थिंक डजंट मैटर, आप बता दें. जी, पहले आप देख लीजिए 2 की 155 देख लीजिए. Because as people who are learning from Quran,
तो and who have राबिया been माइक learning. बंद कर दो प्लीज. आप ही कर राबिया रही हो, अभी माइक कर, बंद कर दो सॉरी प्लीज. Sorry. As people who are learning from Quran, it is now our responsibility that this is the stance that we take and propagate further. 2 ki 155. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. And indeed, be sure, we shall test you with something مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ, from fear and from hunger. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, and from the loss of in your ambal, in your wealth. وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ, and from the loss in your nafs, meaning death हो सकती है, और समारात आपके रिजल्ट्स में भी आपको लॉस हो सकता है. व बशिर साबिरीन, एंड गिव गुड न्यूज़ टू दोज हु हैव पेशेंस. अल्लाज़ीना इज़ा असाबत हुम मुसीबत, और वो लोग जब उन पे पड़ती है कोई मुसीबत, कालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम इज़ आर रिटर्न. अब ये आपने प्रोपेगेट करना है उन लोगों को जो कि तकलीफ़ में हैं, who are going through a tough time, who are stressed mentally or emotionally or facing losses, that we belong to Allah and to Him do we return, because we all have been through this. ऐसी बात नहीं थी कि हम मुश्किलात से नहीं गुजरे हैं. 7 की 188 देखिए. बट अगर हम अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें पहले गुजार दिया एंड वी बिन थ्रू इट. 7 की 188. कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन, कह दीजिए, मैसेंजर से कहा है, रसूल से कह रहे हैं अल्लाह, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन, नहीं है कोई अथॉरिटी मेरी नफ्स पर ऑफ एनी प्रॉफिट, कि मैं कोई नफ़ा दूँ, वला दर्रन, और ऑफ एनी distress or harm to myself, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके जो चाहे अल्लाह. सो रसूल अल्लाह से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि अगर अल्लाह के मैसेंजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऑफ हैविंग एनी गुड और हार्म ब्रॉट टू हिमसेल्फ, तो हाउ कैन वी से एनीथिंग. वलाउ कुन्तु आलमुल गैबा, और अगर मुझे होता कोई इल्म गैब का, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं कसरत से कर देता अच्छाई में से, आई वुड हैव एक्सीडेड इट इन गुडनेस. वमा मस्सनी यस्सू, और मुझे कोई बुराई अफेक्ट ना करती. दैट इज़ नॉट ट्रू. सो अल्लाह के रसूल को भी बुराई अफेक्ट करती है, वो हमने देखा हुआ है. इन अना इल्ला नज़ीरुं व बशीरुं, बेशक मैं हूँ सिर्फ़ पहुँचाने वाला, न्यूज़, नज़ीर एंड वार्न करने वाला और गुड न्यूज़ देने वाला. लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं. ठीक है जी. सो अल्लाह के रसूल भी कोई अथॉरिटी नहीं रखते हैं ऑफ ब्रिंगिंग ऑल गुड टू हिमसेल्फ. और जितने ट्रायल्स उनके हमने पढ़े हैं कुरान में, तो वो ट्रायल्स तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं. तो आप कह ही नहीं सकते कि अगर कोई मुश्किल टाइम से गुजर रहा है कि दैट इज़ पर्सन इज़ रॉन्ग. दैट इट्स टेस्टिंग टाइम, इट्स अ ट्राइंग टाइम फॉर एवरीवन. और आपकी अप्रोच 21 की 107 की सी होनी है टुवर्ड्स अदर पीपल एट दिस टाइम, इफ़ यू आर इन अ गुड प्लेस एट द मोमेंट. सो 21 की 107 देख लीजिए. वमा अरसलनाका, और नहीं हमने भेजा आपको, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिवाय रहमत आलमीन के लिए. तो आपका स्टांस, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट has to be like in the following of Rasul Allah, to be रहमतल लिल आलमीन. तो आपने, इसका मतलब ये है, बी काइंड टू एवरीवन who is following, who is not following, who is suffering, who is not suffering, and be kind and compassionate to everyone because we are all in it. So आप अगर गुज़र चुके हैं मुश्किल टाइम से, या आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है at this time, so kindly be a source of comfort to others and convenience, and do not have judging attitude towards anyone, because we are all the same. We are nafse wahida, and हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है as people who are reading Quran and who have been through our trials also, because that is the only reason why if we are
fine, we are fine at this time because of that कि हमारा टाइम भी गुजर चुका है, हम भी गुजर चुके हैं और आगे भी आएगा किसी भी वक्त. तो अगर किसी का टाइम आ रहा है of test and trials, kindly be supportive, understanding and compassionate. So that's all जी I wanted to just share. तो यानी ये इन शॉर्ट ना, तो ये जो एस्टैब्लिश चीजें हैं जो कुरान में बताई हुई है कि आफात आएंगी और हर इंसान को कैसे गुजरना है उसमें से, वो उसका अपना एक इंडिविजुअल इम्तिहान आजमाइश उसकी अपनी है ना. है जी, तो उसको बिल्कुल हम है. ऐसा तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने रिएक्ट किया है लोगों की बुराइयों की वजह से. लोग कहते हैं मैं आपने बहुत अच्छा किया, समझा दिया कि 2 के 155, 156, 7 Actually, के why? 188, बहुत अच्छा Yes. किया, नहीं बहुत देखिए वो अच्छा किया उसकी भी एक जी. रीज़न है, लाइक यू एक्चुअली यू पॉइंटेड आउट, तो वो उसकी भी एक रीज़न है जिसको पीपल एक्सटेंडेड टू अ डिफरेंट लेवल. 4 की राइट, 79 देख लीजिए, ठीक है जी, 4 थैंक यू. की 79 देख लीजिए, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न वाई पीपल से दिस कि वो उनकी उन्होंने बुरा किया तो उनके ऊपर अब प्रॉब्लम आई है. तो द सेम वे हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आई, हम सब ने फेस किए हैं प्रॉब्लम्स. नोबडी कैन से कि जी बिल्कुल. बिल्कुल, it's तो a law of nature, it's a law of nature, एब्सोल्युटली. if you're तो going to आप harm yourself, obviously, we're not treading the same path, जी obviously you're going to harm yourself ना. दैट्स तो राइट, उसमें ये तो उसी नहीं से है कि करेक्ट जी. वो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, रिएक्टिव तो नहीं होती हर चीज ना. एब्सोल्युटली. जी. ये आयत देख लीजिए 4 की 79. मा असाबा का मिन हसनतिन फमिनल्लाह है, और जो भी पड़ती है तुम पर एहसन में से, whatever good happens to you is a blessing from Allah. फमिनल्लाह is from Allah. व मा असाबा का मिन सय्यअतिन, और जो भी पड़ती है तुम पर कोई बुराई, फमिन नफ्सिक, तो वो तुम्हारी नफ्स में से है. व अरसलनाका लिन्नासे रसूला, और हमने भेजा है तुम्हें इंसानों के लिए एज अ रसूल. वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह एज अ विटनेस. ठीक है जी, आगे भी देख लें. मई युतिइर रसूला, और जो अतात करेगा रसूल की, फ़कत अता अल्लाह है, तो बेशक वो अतात है अल्लाह की. व तमन तवल्ला, और जो पलट जाएगा तुम में से, फमा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा, फिर नहीं हमने भेजा तुमको टू वॉच ओवर देम, एज अ हिफाजत करने वाला. सो इस आयत को 79 जो आयत है उसको पीपल अंडरस्टैंड कि जो मुसीबत पड़ती है वो अपनी नफ्स की वजह से ही पड़ती है. एब्सोल्युटली, ये तो अल्लाह ताला ने क्लियरली कह दिया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी दूसरे पे मुसीबत पड़ी हुई है तो आपके ऊपर नहीं पड़ सकती. आपके ऊपर भी पड़ सकती है, क्योंकि आपके अंदर भी खामियां हैं. सो आपकी भी वीकनेसेस थी, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू अ टफ टाइम, to now be in a place where you are in a helping place, you can give back. तो अब आपका टेस्ट है whether you give back or you sit and point fingers. अब आपका ज़्यादा टेस्ट है. सो अगर आप उस तरह से सफ़र नहीं कर रहे थ्रू द थ्रू वरीज एंड फियर, you are actually have another test in front of you. How do you behave towards those people? सो आपको जो पीछे आयत हमने पढ़ी है कि यू हैव टू बी रहमतुल लिल आलमीन, सो यू हैव टू ओवरकम एनी नेगेटिविटी दैट यू हैव इनसाइड योर हार्ट अगेंस्ट पीपल. ओवरकम दैट and reach out to people and help them go through this tough time and give them support and be compassionate. We have to be responsible for our own behavior, We right? are responsible. And our जी actions. जी जी बिल्कुल That's आंटी, वी आर important. रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर आवर एक्शंस. बट एट द टाइम यू सी, जब लोग गरीब होते हैं जिस तरह, तो इम्तिहान उन लोगों का होता है जिनके पास माल है, कि वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. इसी तरह इस टाइम ऑफ क्राइसिस में इम्तिहान उनका नहीं है खाली, आपका भी इम्तिहान है कि आपके अराउंड सराउंडिंग में अगर, बिकॉज लाइक वी रेड दिस आयत, कि अगर हम इस आयत में देखें तो वी कैन ईजिली जज अ पर्सन कि ओके उनको अपनी नफ्स की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज दे आर दिस वे. नॉट टू टेक इट पर्सनली. आप अल्लाह, सब अल्लाह के बंदे हैं, हम पे भी तो मुश्किलात आई हैं और हमने भी सब्र किया है. अल्लाह का बड़ा करम था है अभी भी कि हम कुरान से हेल्प लेते हैं, और अल्लाह, वी ऑलवेज टर्न टू अल्लाह एंड अल्लाह गाइड्स अस. बट इट डजंट मीन दैट वी डोंट फेस
difficult times. We are all the time facing trials and testing times, each one in his or her own way. But in a situation where you are not going through a certain tough time like others are, and you can help out, वो आपका इम्तिहान है कि आप उनको हेल्प आउट करते हैं या आप उनको देख के जज करते हैं. सो जज नहीं कीजिए. And be thankful. And of course, be grateful. Absolutely, be grateful and give back in the Give ways back. that you can. It's important. Ji. Thank you. Thank you, Amna. Thank you, Ji. Thank you so much.